Good morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Good Please morning. take your seat. Sneha, Yes, sir. will you be comfortable in English or Hindi? So I'm comfortable in both the languages. In both the languages. Okay. Introduce yourself to the board members. I was born and brought up in Patna. My initial schooling has been taken place from Patna Central School, and I've completed it in 2016. I have done my graduation in mathematics honors from Magad Mahila College, Patna University in 2019. After that, I am pursuing masters in mathematics from Patna University only. My hobby is mandala art, and in the long run, I want to be a contributing individual to the development of the society. Okay. ठीक है, Sneha. You want to become a civil servant? You want to join civil service? Yes, sir. What would be your initial grade pay and pay scale? Any idea? No, sir. No. Okay. Supposing you are going to any private organization for any interview, will you be knowing it beforehand that you are going there and you are going to get this much of salary or that salary? If you go to any private organization for interview, Sir, in private organization, supposing you are going for an interview in any private organization, so will there be in your mind that what would be my expected salary? yes, sir. Normally it's there. Expected salary is there, and as far as my knowledge, I know that it is being chosen according to the person, and they are given salary according to You their. have got no idea about this civil Credibility. service salary and all. No, sir, I have no idea about salary. Okay, so if you join the service and later on you find that salary scale, salary structure is not as per your liking, what will you do then? Will you leave the organization? So I have less materialistic demands. So even if my salary is and it is the salary of the civil servant are enough for their sustenance, for a good sustenance. Is So- it a good quality for a human being who is aspiring to become a civil servant and doesn't know what would be the salary? So I must be knowing that. You I'm should be sorry knowing that, for okay. that. No problem. I'll check it. ठीक है, Sneha. That's all right. And I can see that you have won some prizes in speech competition Yes, and sir. debate competition. What is the difference between speech and extempore? What is speech? So speech is generally we are given a topic and on which we have to express our opinion as well as any information regarding that, whatever we know. We say that in a speech competition. Can we say that speech is structured and extempore is unstructured? Can we say that? So I'm sorry, sir. I'll have to check on it. Okay, no problem then. Debate also, you're a good debater. Yes, sir. So, examination system should be abolished from the school. You have to speak for the motion. Tell me 3 points. For the overall development of the student, not only specified in only on the marks and grade, we should abolish the examination system. Second, we have seen in many places like in many Western nation as well as Japan, in initial classes there are no examination being held. So we can, and they have a better their people are better. It is not that they are not comfortable without examination. So we can learn from their experiences and say that examination can be abolished and should be abolished. Okay, Sneha, last question from my side. You are very, very young. We all pray that you'll get into civil service. Supposing on the very first day when you join the service and you find that someone around, say, 55 years of age is one of your staffs, and you have given that person a direction and that person is not going to obey you. He said that, no, I'm not going to follow you, you're too young. No, that's how the society is and we are not going to follow. You have requested that person once, twice, thrice. That person is adamant. He is not following your direction. What will you do then? So even after, I'll ask him one more time, but
after he says that he will not obey my direction, even though I'm his senior, I'll file a complaint against him. The procedure File a that has. complaint to whom? To your senior. So not exact. The process must be there. How I have to file the complaint and how I will handle this. Okay. But I'll take the legal way. स्नेहा राइट Yes, sir. आपने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से करा है राइट जी सर. ओके और आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है जी सर. तो मैथमेटिक्स भी तो प्रेजेंट था यहाँ पे ऑप्शनल्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रैक भी करते हैं जी आपका सर. पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैथ से चल रहा है तो आपने क्यों ज्योग्राफी क्यों ऑप्ट किया सर जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की तो मैं एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरा जीएस का पोर्शन भी एक अच्छे से कवर हो. इस समय मैंने और भी सारे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को पढ़ा जीएस के लिए. तब मुझे ये पता चला कि ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट अच्छा है और उसके लिए सोर्सेज भी अवेलेबल है और जितने भी उसकी तैयारी के लिए जो भी चीज़ चाहिए सब कुछ मुझे आसानी से मिल जाएगा. तो इसलिए फिर मैंने एक वाइज डिसीजन लेते हुए ऑप्शनल अपना ज्योग्राफी को चुना. अच्छा मैथ्स का यूज ज्योग्राफी में कहीं पे हुआ है क्या कोई ऐसी थ्योरी जो कि मैथ्स का यूज करती हो ज्योग्राफी के अंदर सर थ्योरी सर वेबर इंडस्ट्रियल मॉडल जो Weber होता है industrial model, उसमें मैथ्स का यूज होता है. वेरी गुड और एनीथिंग एल्स सर वोन थ्यूनन मॉडल में कह सकते हैं कि यूज वन होता है. मॉडल में भी कह सकते ओके वेरी गुड ओके स्नेहा मुझे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बारे में बताएं क्या है आपने नाम सुना है क्वांटिटेटिव सर. रिवॉल्यूशन ओके सर मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी बट अगर आप परमिशन दे तो मैं डेफिनेटली ट्राई कर गो सकती अहेड हूँ. सर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया था जिसमें कि मेनली जो अजम्पशंस बहुत सारे होते थे और एक लॉ बनाने पे फोकस किया जाता था. वहाँ पे ह्यूमन के थॉट्स को ह्यूमन ज्योग्राफी का होते हुए भी ह्यूमन के थॉट्स को इग्नोर करके जैसे माना जाता था कि ह्यूमन एक रैशनल है, ह्यूमन इकोनॉमिक है, ये सब अजम्पशंस लेके वहाँ पे थ्योरीज बनाए जाते थे. ओके और बिहेवियर थ्योरी क्या थी या बिहेवियरलिज्म जिसको कहते हैं ये क्या है सर बिहेवियर ज्योग्राफी हाँ हाँ सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही ओके हूँ. कोई बात नहीं ठीक है आप मुझे बताएं कि डाइकोटॉमी और ड्यूलिज्म में क्या डिफरेंसेस है सर डाइकोटॉमी होता है कि दो चीज जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है ओके और डुअलिज्म में दोनों चीज एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग डुअलिज्म कहते हैं. ड्यूलिज्म कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि ज्योग्राफी इज फुल ऑफ डाइकोटॉमी एंड ड्यूलिज्म ठीक है तो दो चार एग्जांपल्स बताएं कहाँ पे ज्योग्राफी में डाइकोटॉमी और ड्यूलिज्म यूज हुआ है सर जैसे फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी. ओके वेरी गुड और सर और अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ. और नहीं याद कर पा रहे अच्छा आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा राइट जी सर. क्या उन्हें एक ज्योग्राफर कह सकते हैं सर मैं ये नहीं बता पाऊंगी. अभी आप नहीं बता पाएंगे ओके ठीक है आप मुझे हार्टलैंड थ्योरी का नाम सुना है क्या आपने हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड जी थ्योरी सर. बताएं मुझे कुछ इसके बारे में सर ये दो थ्योरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आती है जिसमें कि ये बताया जाता है कि किसके पास ज़्यादा पावर रहेगा. ओके जिसमें कि हार्टलैंड थ्योरी में रशिया और आसपास के एरिया को लेके बताया जाता है कि ये इनके पास मेन सेंटर ऑफ पावर रहेंगे और उनके पेरिफेरल एरियाज जो है उनके पास उससे कम पावर रहेंगे, इस तरीके से उसमें बताया जाता है. आज के समय में कुछ इसका कोई इम्पोर्टेंस है कोई इसका सिग्निफिकेंस हार्टलैंड थ्योरी का 100% तो नहीं कह सकते बट हाँ उसकी उस समय के हिसाब से जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था उसका विजडम अभी भी दिखता है. विजडम दिखता है ओके वेरी गुड ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छे आंसर्स कर रही हैं ओके नेक्स्ट आप मुझे बताएं कि आपने जेट स्ट्रीम के बारे में सुना होगा राइट जी सर. ओके तो जेट स्ट्रीम क्या होता है
सर जेट स्ट्रीम एक हवा है जो कि अपर ट्रोपोस्फेयर में चलता है, ओके जिससे बहुत सारे मतलब सरफेस पे जो विंड्स चल रहे हैं उनका डायरेक्शन भी वो बताने में हेल्प करता है, मतलब किस डायरेक्शन में वो जाएंगे उसको वो डिक्टेट करता है कभी इंडिया कभी। के क्लाइमेट पे कुछ इम्पैक्ट है क्या जेट स्ट्रीम का? सर मॉनसून आता है उसमें जेट स्ट्रीम का रोल रहता है। ओके, और कहीं? टेम्परेट वेस्टर्न डिस्टरबेंस जब आता है तो मेडिटेरेनियन सी से जो हवा आती है उसमें भी जेट स्ट्रीम का रोल रहता जेट है। स्ट्रीम का रोल होता है। ओके, कैसे चलता है ये जेट स्ट्रीम? इसका पाथ कैसा होता है? सर वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट होता है ऑलवेज, या परमानेंट जेट स्ट्रीम ऐसे चलते हैं? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ बट हम्म। मुझे अभी यही याद आ रहा है, बट यही मैं है। देख लूंगी इसे। ओके, वेरी गुड। ठीक है, और कुछ इसके डायरेक्शन के अलावा और इसके मूवमेंट में कुछ जो आपको याद आ रहा हो जेट स्ट्रीम के बारे में? सर अभी और कुछ याद नहीं आ और रहा है। कुछ नहीं याद आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे बताएं कि कोपेन्स का नाम आपने सुना होगा। कोपेन ने जी सर। किस चीज से रिलेटेड है ये कोपेन? सर क्लाइमेट का क्लाइमेटोलॉजी में उन्होंने थ्योरी दिया था। ओके, क्लासिफिकेशन जी सर। ओके, वेरी गुड। स्नेहा मैथमेटिक्स पढ़ा है आपने, स्टिल पीजी कर रही है। जी सर। तो कुछ बेनिफिट रहेगा सिविल सर्विसेज में आपको इसका? सर मैथमेटिक्स पढ़ने के वजह से एक लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, जो कि मुझे हेल्प करेगा। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है मैथमेटिक्स के वजह से। इसके अलावा बहुत सारे थ्योरीज और मॉडल्स यूज़ होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सिविल सर्विसेज में जो भी लॉज वगैरह बनेंगे उसमें स्टैटिस्टिक्स का भी बहुत योगदान होता है, तो वहाँ पे मुझे मैथमेटिक्स का यूज़ हो जाएगा। लॉज बनने में स्टैटिस्टिक्स का कंट्रीब्यूशन होता है कैसे? सर जैसे लॉज बनते हैं तो वो किसी डेटा के आधार पे बनते हैं। जैसे सेंसस का डेटा आया तो उसमें पता चला कि कोई एक कम्युनिटी या किसी एक के बारे में वो पिछड़ा वर्ग है, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग हम उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम या लॉ बना सकते हैं। इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होगा। ये मैथमेटिक्स का बेनिफिट मिलेगा आपको। और ज्योग्राफी का? सर ज्योग्राफी के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे सबसे पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ हो जाएगा। फ्लड्स, ड्रॉट्स, बिहार बहुत फ्लड प्रोन एरिया है तो वहाँ मुझे यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ह्यूमन ज्योग्राफी में हम बहुत सारे थ्योरीज पढ़ते हैं, उन सबों को एक थ्योरी को तो नहीं यूज़ किया जा सकता, बट एक यूज़ किया जा सकता है कि हम कैसे कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पे लगाएं, इन सब के बेसिस पे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे फर्टाइल प्लेन है बिहार का, तो एग्रीकल्चर को लेके भी हम यूज़ कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर कहाँ पे कैसा होना चाहिए, सॉइल के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, तो इन सब में डिसीजन मेकिंग में यूज़ हो सकता है। ठीक। लास्ट ईयर मैथमेटिक्स का नोबेल किसको मिला? सर मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं सर। क्यों? अ, फिर मैथमेटिक्स में कौन सा, फिर जो मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए कौन सा अवार्ड है अगर सर नोबेल नहीं है तो? एक एबल प्राइज़ है जिसे मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है। ओके, ठीक है। क्या लगता है आपको क्यों मैथमेटिक्स में नोबेल नहीं मिलता? मिलना चाहिए। फिजिक्स में देते हैं, जी केमिस्ट्री सर। में देते हैं, है ना, बायोलॉजी में देते हैं, यस सर। इकोनॉमिक्स में देते हैं जिसमें ज्यादा मैथ्स ही है, डाटा। यस सर। मैथ्स में क्यों नहीं देते? सर इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ मिलना चाहिए, इस बात से मैं एग्री करूँगी। मिलना चाहिए। हम्म। ठीक। एबल अवार्ड्स आपने कहा। एबल, एबल यस सर। अवार्ड्स, रिसेंटली एबल अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई है फॉर द लास्ट ईयर। यस सर। किस ब्रांच के लिए, मैथ के किस ब्रांच के लिए दिया गया है वो? सर टोपोलॉजी के लिए। टोपोलॉजी के लिए। ठीक। फिर आपकी हॉबी है मंडाला आर्ट्स। क्या होता है ये मंडाला आर्ट?
सर मंडाला आर्ट एक आर्ट फॉर्म है हम्म, जिसमें कि बहुत सारे ज्योमेट्रिक शेप्स जैसे कि सर्कल्स, ट्रायंगल्स, इन सब को यूज करके एक प्लीजिंग सा डायग्राम टाइप बनाया जाता है, जिसमें मैं जिसे सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में कुछ भी और भी ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज होते हैं, सिमेट्री उसमें बहुत ज्यादा रहती है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है आंखों को। ओके। और एक और भी रिलेटेड आर्ट फॉर्म है मंजूषा आर्ट। जी सर। क्या होता है मंजूषा आर्ट की, क्या स्पेशलिटी है? सर मंजूषा आर्ट मैंने ट्राई नहीं किया है कभी, इसके दो मैं बाद- मधुबनी आर्ट भी बनाती हूँ। हाँ ठीक है, तो मंजूषा आर्ट के बारे में आप नहीं आइडिया है सर। नॉलेज नहीं है, ठीक है। ओशियनिक डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करते हैं? नॉटिकल माइल्स में। नॉटिकल माइल्स में। एंड 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ किलोमीटर? सर मैं एग्जैक्ट डेटा भूल रही हूँ। ठीक। एंड व्हाट इज द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ नॉटिकल माइल्स? 200 नॉटिकल माइल्स। 200 nautical miles. Okay. Your interview is over. You can wait and we'll give you the feedback. थैंक यू सर। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा? Very good. You are a very good candidate. We are sure that you this time only you are going to crack this exam with good ranking. थैंक यू You are सर। very good. Your application of mind is wonderful. Very good. You can apply your mind. You can think independently. That is also very good. Certain things here and there, of course, that will always be there. You know, this kind of problems is there with everybody, with all of us. For example, whenever you are getting into civil service, you know, whether you are a very serious kind of a person or not will be determined by the fact that whether you know actually that wherever you are going, what kind of parks and privileges or salaries, whatever you are getting, if you know, that will, यस seal the complete show. You'll be able to get good amount of marks the moment you tell them that I am aware, I know this is going to be the grade pay, this is going to be the pay scale, this and that. It shows that you are very much aware. You are not like any other person who is coming here with a blind spot. So that is a question where you can just. यस आई लुक It's very easy to get to know Yes, sir. what will be the grade pay and all. And it will give you a lot of confidence also. And one more point for a candidate like you. For example, Bihar Promotion Service, you have not asked question, but question may be asked. सर आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर अदर पोस्ट। No, that is not the question. Bihar Probation Service, for this particular post you are eligible, na? यस सर। So do you know the service? नो सर। That is what my point is. So you just Google it out, or you just see that whether some information can be there. You know what kind of service you are going to deliver there. So that will open up a new chapter for them also. If they ask a question that why, because police service and all these are common. सर But आई एम I नॉट understood. That's not my एलिजिबल। question. My point is that when you are writing Bihar Provision Service, so obviously their antenna will stand. That what is Bihar Provision Service, and they'll ask you questions, and then you'll be able to justify your Yes, sir. presence there. And one thing you have satisfactorily answered that question. जैसा आपने बोला complain करोगे. See, basically whenever you go into a post, you'll be given some duties and some authorities also. It's not that only and only duties will perform. Some authorities will always be there. If a subordinate is not obeying you, so disciplinary action can be taken against him. So I'll simply say, don't say I'll complain to my senior. Then that will be a problem. Because you are Okay. going to be a civil servant. You have to have an independent decision. Authority. They have got some powers. So if they say that I'll take the disciplinary action, dereliction of duty, disobedience, though there are so many things. So you can simply say that if the person does not follow my instruction after 1 or 2 requests, then I'll take the action. Whatever is the action, I'll take. So that shows that you are very, very bold kind of a person. You are meant for this service, right? This is one more thing. And जैसा सर का क्वेश्चन था, आई एक्सपेक्टेड यू टू आंसर दिस वन कि मैथमेटिक्स में नोबेल क्यों नहीं है. मैथमेटिक्स में नोबेल इसलिए नहीं है क्योंकि मैथमेटिक्स का यूज हर जगह पे है. फिजिक्स वाले जो नोबेल मिलता है उनसे भी तो मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी मैथमेटिक्स है. मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज यूज्ड.
सर ने बोल भी हाँ, दिया, hint सर ने दिया बोल था। भी दिया, एक पर और आप कैच नहीं कर पाए, है ना? मुझे लग रहा था कि शायद आप कैच कर लेंगे और आंसर दे देंगे आप। हाँ, दे पाएंगे, बट एनीवेज मैथमेटिक्स का यूज हर जगह पे है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, दिस यू कैन सी। अगर फिजिक्स में किसी को नोबेल मिल रहा है तो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, है ना? अदरवाइज वेरी गुड कैंडिडेट। ठीक है थैंक यू सर। मेरे तरफ से भी बहुत आपने जितने भी आंसर्स करे वेरी मच सेटिस्फैक्टरी, बहुत अच्छा आपने आंसर करा है। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में और रिवीजन की सर जरूरत है। रिवीजन की जरूरत हाँ है बस जी सर। और जो भी आंसर्स आपने करे बहुत अच्छे तरीके से आपने हैंडल करा क्वेश्चंस को। थोड़ा बहुत जो थ्योरीज वाले पोर्शंस हैं वहाँ पर आप थोड़ा वर्क कर लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट। थैंक यू सर। ठीक है स्नेहा, एक जगह पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, नॉटिकल माइल्स, बिकॉज सर भूल गए मैथमेटिक्स थे। एंड ज्योग्राफी, ठीक है। अदर देन दैट फिर आप बिहार से बिलोंग करते हो, मंजूषा आर्ट बिहार का एक आर्ट फॉर्म है, ऑलरेडी आप एक आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करते हो, तो ऑलमोस्ट वो डिफरेंट और उसमें डिफरेंस ये है कि डिफरेंट फ्रेम्स में बनते हैं, एक स्टोरी को डिफरेंट फ्रेम्स में कहते हैं हम लोग। तो जब एक फॉर्म आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो दूसरे पे थोड़ा सा तो और एक्सपेक्टेशन एकदम होती है। रिजेंबल करता है, बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है दोनों आर्ट्स जो हैं। सर मैं ट्राई भी कर लूंगी। अच्छा हाँ ठीक ठीक है। है, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड, सो यू शुड वर्क हार्ड फॉर बेटर रैंक्स। यस सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर वन थिंग, जब हम लास्ट में जाने लगते हैं तो आई डिड लाइक दिस, थैंक यू सर। सर ये ठीक था या फिर नहीं करना चाहिए ये? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर कर सकते हैं। वो कोई बहुत कर सकते। मैटर नहीं करता है। ठीक है, थैंक यू सर। एवरीथिंग शुड बी नेचुरल। अगर आपको लगता है अगर वो नेचुरली आ रहा है, हाँ। मैन्युफैक्चर्ड सर नहीं है, एक्चुअली मेरा हैबिट है थैंक यू ऐसे बोलने बिकॉज़ का। इट्स स्कूल में सिखाया गया था तो आदत हो गया ऐसे बोलने का, वैसे ही तो बोला करें, गया कोई कि ऐसे नहीं करना, ऐसे फिर ऐसे कर लेना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेचुरली जो आता है नेचुरली जो आता है वो वो ठीक है। ठीक है। ठीक है।